Welcome to FM Education Academy YouTube channel. In today's video lecture, we will be seeing Chapter 2 Chemical Equations from the textbook of TS and AP SCERT detailed point-wise explanation. This is a part 2 video of this chapter. In part 1, we had discussed about the various examples of chemical changes, what chemical changes are, and I had also explained activity 1, 2 and 3 and about what result we get from activity 1, 2 and 3, what a chemical equation is, how to write a chemical equation, what is a balanced chemical equation, what are formula units, and we had seen one example of hydrogen plus oxygen gives rise to water. We had done till here in the previous video. Now in today's video lecture, we will be seeing from example 1 combustion of propane C3H8. So what is propane? The molecular formula of propane is C3H8. So C3H8 is a colorless. Colorless means which does not have any color. Odorless. Odorless means which does not have any smell, and it is a gas, and that gas is often used as heating and cooking fuel. So in this combustion of propane, it is asking us to write a chemical equation for the combustion reaction of propane. And here it is also telling us that for the question of combustion reaction of propane, the reactants will be propane and oxygen, and the products will be carbon dioxide and water, okay, for combustion of propane. How is it like that? I'll tell you. See, combustion means burning, right? So what are we burning here? We are going to burn propane here. Propane molecular formula is C3H8. So when we burn, what is present in the air? Oxygen, O2 is present in the air. So what is released when we burn propane plus oxygen? Carbon dioxide will be released. How do we get carbon dioxide? Split this C3H8. So this carbon combines with oxygen to form carbon dioxide, and then some more oxygen atoms and hydrogen atoms we have. So that will combine together and form water. So that is how you're getting the step 1, that is unbalanced chemical equation using correct chemical formula for all the substances, which is also called as skeleton equation. So that is your step. So count the number of atoms of each element on both sides, carbon, hydrogen, oxygen. These are nothing but these are my elements, symbols of elements. Symbols means symbol of carbon is C, symbol of hydrogen is H, symbol of oxygen is O. Now count the number of atoms on LHS of carbon. How many are there? 3. You can see here. So 3. How many atoms are there on RHS of carbon? 1. So writing here 1. For hydrogen, how many atoms are there? 8. Here, how many atoms of hydrogen are there? 2. How many atoms of oxygen are there? 2 on LHS. And here, how many atoms of oxygen are there? If you see carefully, this is 2 atoms of oxygen. You can see here oxygen, and all here also we have oxygen. But this 2 belongs only to hydrogen. So we should see the number which is before the water. What is the number which is before the water? It is 1 here. So 2 oxygens plus 1 oxygen. What is 2 plus 1? 3. And this is called as RHS, as you also know. And this is also called as LHS. So that is what we are writing as LHS and RHS. So on LHS, how many atoms of oxygen? 2 atoms. On RHS, how many atoms of oxygen? 3 atoms. 2 plus 1 we got. Okay. Next, what should we do? Again, make a table and balance a non-metal. Which is a non-metal here? Carbon is a non-metal, hydrogen is a non-metal, oxygen is a non-metal. But I told you in the previous video lecture that when you balance chemical equations, you have to first give preference to balancing elements apart from hydrogen and oxygen. So here, the element apart from hydrogen and oxygen is carbon. So first let us balance carbon here. So if we observe on the RHS side of carbon, we have 1. So here we can make 3. So what to do? In the next table, you will write element, number of atoms, LHS, RHS. Okay, and you will write carbon, hydrogen, oxygen. So carbon 3 as it is you will write, and here what will you write? 1 into 3, because why are you multiplying this 1 with 3?
because on RHS also we want to make it 3 atoms. Why do we want to make it 3 atoms? Because we want to make the number of carbon atoms equal. Here already we had 3, so this also you want to make 3. How to make this 3? Multiply 1 with 3. Next, this you'll write as it is 8, okay, 2, 2, 3. Now after writing these changes, again write the chemical equation. Okay, so again writing the chemical equation. What does the chemical equation become? What are we doing? We are just adding 3 atoms on RHS of carbon. So the chemical equation is C3H8 plus O2 giving rise to CO2 plus, in place H2 here. Now in place of carbon dioxide, that is before carbon dioxide, what should we add? We should add 3 atoms of carbon, right? Now again number of oxygen atoms will differ and number of hydrogen atoms will differ. So what this equation will become? See, this is the equation which we got, C3H8 plus O2 giving rise to 3CO2. This one, sorry, 8th equation. So again write the table, okay? The element, number of atoms, LHS, RHS. Okay, so here what do we have? Carbon, hydrogen, oxygen, 3, 3, we got 3, 3 now, 8, 2, 2, 3. Now what we can do? First, if we see here, the number of oxygen atoms which we have here is 2 atoms, means 2 products we have here, right? So what we'll do is, for oxygen, and only 1 reactant we have for oxygen on LHS, 2 we have an RHS of oxygen and 1 we have an LHS. So first we'll balance hydrogen and then we'll balance oxygen. So how to balance hydrogen here? If you observe here we have 2, this also I have to make 8. How can I make this as 8? This is 8, right? This also have to make it. How can I make this as 8? Multiply it with 4, because 2 4s are 8. So when I multiply this with 4, what I have to do? I have to add 4 atoms on the RHS of hydrogen. So what will my equation become? My equation will become C3H8 plus 5O2 giving rise to 3CO2, earlier step we got, plus 4H2O. Why did I write 4H2O here? Because just now we added 4 atoms on hydrogen side. Now count the number of oxygen atoms. How many oxygens are there on LHS? 5 2s are 10 oxygens, 3 2s are 6 plus 4, right? 10 oxygens are there here, and here also we have 10 oxygens. It means that here the oxygen atoms are balanced. See, I'll show you once again. 3 carbon atoms on LHS, 3 carbon atoms on RHS, 8 hydrogen atoms on LHS, 4 2s are 8 hydrogen atoms on RHS, 5 2s are 10 oxygen atoms on LHS, 3 2s are 6, 6 plus 4 oxygen atoms we have here. This 2 belongs only to hydrogen. 6 plus 4 is 10. So 10 atoms on RHS of oxygen and 10 atoms on LHS of oxygen. It means that the equation is balanced. Therefore, the equation is balanced. See the equations. This was step 1, step 2, step 3. We are added 3 atoms of carbon. Step 4, we are adding 4 atoms before water. So now the equation is balanced. Okay, these are my smallest whole numbers which I got. 5 is the smallest whole number, 3 is the smallest whole number, and 4 is the smallest whole number. So whenever you write the final step, you have to make sure that these are the smallest whole numbers. Smallest whole numbers means if this is 10 O2 and here we have 6 CO2, then again we can divide this now, 2 3s are, 2 5s are. So therefore we should make sure that we are getting smallest whole numbers. But usually you will get smallest whole numbers only. No need to worry about this. Just worry about the steps. Okay. So next question you have is write the chemical equation for iron oxide reacts with aluminium to form iron and aluminium trioxide. So iron oxide formalized Fe2O3, reacts with means plus should come, aluminium means Al, giving rise to, why are we writing giving rise to? Because it is telling iron oxide react with aluminium to form. To form means it is arrow. To form what? Iron. Iron formalized Fe plus aluminium trioxide formalized Al2O3. So this is my unbalanced chemical equation. That is my step 1, right? Now step 2 will be to count the number of atoms on LHS and RHS. So let us count the number of atoms on LHS and RHS. Here
So number of atoms on LHS of, first write element. What are the elements? Fe, that is iron, oxygen, that is O, and aluminium. These are the three elements which you have in this reaction. Now how many atoms of iron do we have on LHS Fe? 2 atoms. You can see here, this is my LHS and this is my RHS. So I have 2 atoms on LHS of Fe and 1 atom on RHS of Fe. Oxygen, how many atoms are there? Here we have 3 atoms on LHS, here we have 3 atoms on RHS, here we have 1 atom of aluminium, and here we have 2 atoms of aluminium. Okay, next what we should do, remember the order of preference. First, give preference to balancing metal. Metals here are iron and aluminium. So what we'll do, first we'll balance iron, then we'll balance aluminium, and at the last we'll balance oxygen. So again write the table, element, number of atoms, LHS, RHS. What we can do in this step now, we can balance this Fe, so we can make this 1 also as 2. How can we make this 1 as 2? Because 2 is equals to 2 we want. We can multiply this with 2, so that becomes 2. So that only we are doing here. C multiplied 1 with 2, so that becomes 2. Now after writing this table, again write the chemical equation. So Fe2O3 is not changing, Al is not changing, that is LHS is not changing here. And RHS also, what is changing? Only Fe of RHS is changing. So in before Fe, write down 2. Remember I told you, you should not write below. You cannot write below. You cannot change the ratio of molecules or atoms. So write it before. So after writing this equation, again write the table, element, number of atoms, LHS, RHS. Why? Because if you observe here, still aluminium is not balanced. Here we have 2 atoms of aluminium on RHS, and here we have only 1 atom of aluminium on LHS. So balance that. Make this as 2. How to make this as 2? Multiply it with 2. Okay, see, Fe 2 atoms, okay, 2 atoms, oxygen 3, see, oxygen has been made 3. See here, already oxygen were 3 from before only. Now also if we write this also, we are having 3 oxygen atoms on LHS, 3 oxygen atoms on RHS. Already oxygen is balanced. So multiply on LHS 2 atoms of aluminium. 2 it became. Now again write the chemical equation, Fe2O3 plus already this on LHS, what change we have done? We have added 2 atoms of aluminium. So before aluminium, write down 2. So Fe2O3 plus 2Al giving rise to 2Fe plus Al2O3. Is the equation balanced? Yes. Hence this is my step 4, which we can say that hence the equation is balanced. Why? Because all number of atoms of iron, 2 atoms of iron, 2 atoms of iron, Fe. 3 atoms of oxygen, 3 atoms of oxygen, 2 atoms of aluminium, 2 atoms of aluminium. If the number of atoms on LHS and RHS are equal of all the elements, we can say the equation is balanced. So you have to continue balancing until you get the number of atoms on LHS and RHS equal. These 2 examples were there in your textbook. Okay, as you can see, example 2 and example 3. And this example, before example 1 and example 2, actually this is also one more example, na? Hydrogen plus oxygen giving rise to water, but they didn't give one like a separate numerical for it. They just gave random example EG for it. So actually 3 examples are there in your textbook, okay? And this H2 plus O2 giving rise to H2O, this question came in this 2022 board exam of May, okay, to balance this chemical equation. So concentrate and practice other questions also well. Okay, now we'll see the remaining topics. One second. Okay. Yeah. So the next topic is how to make a chemical equation more informative. How to make a chemical equation more informative means how can I get more information from a chemical equation. These are called as chemical equations, right? So first is by knowing the physical state of the chemical equation. What do you mean by knowing the physical state of the chemical equation? See, to make the chemical equation more informative, the physical states of the substances may be mentioned along with their chemical formulae. The different states, that is gaseous, liquid and solid states, are represented by the notations. For gases we represent G, for liquid we represent L, and for solid state we represent S, and all these we represent in brackets. If the substance is present as solution in water,
the word aqueous is written. If we have a solution and water is mixed with that solution, then we call that as aqueous also. So for totally 4 states we have. So by expressing physical state, we can make it more informative. That is one condition, okay, of getting more information from this chemical equation. See, the word balanced equation is written along with the physical states. Remember, we had balanced this equation, right? Fe2O3 plus 2Al. What is this? On arrow we have a triangle. This triangle represents heating. So one more information we got, that for representing on heating, that is when we heat iron oxide and aluminium, we get iron and aluminium trioxide. So we can represent that with the help of small triangle. And observe here, what do you see here carefully? You can see that in bracket S is written S, S, S. It means that all 4 are in solid form. So you are adding one more information, that along with chemical equations, you are also giving the state of the chemical equation, that all 4 are in solids. Okay. Next is by saying whether the heat is evolved or heat is absorbed. Heat is evolved means it will be exothermic reaction. If heat is absorbed means it will be endothermic reaction. Evolved means released. So I will tell you how is that possible. So since we are talking about iron and aluminium here, it is telling that this is your aluminium, how it looks when it is solid, and this is your iron, how it looks when it is solid. Okay. So how to express the heat change? We know that, for example, take the example of, once again, carbon plus oxygen giving rise to carbon dioxide. So here carbon is in solid form, oxygen is in gaseous form, carbon dioxide is in gaseous form, plus Q is written. So for exothermic reaction, for heat change, we are representing heat change with the help of the letter Q. Okay, whenever Q is written, and you should understand that what is that? That is heat change. But how to know whether heat is liberated or heat is absorbed? So if it is plus Q, means that heat is released. Heat निकल के आ रही, मतलब exothermic reaction है वो. And see one more example, N2 plus O2 giving rise to 2NO minus Q. Minus Q यानी heat use हो रही इसके अंदर. Heat use हो रही reactants में का मतलब क्या है? Endothermic reaction, मतलब heat absorb हो रही. तो plus Q represents exothermic reaction, heat निकल के आ रही. Minus Q represents endothermic reaction, heat absorb हो रही. Then how can you express how can you make the chemical equation more informative? By expressing the gas evolved. Yani here it means that if a gas is evolved in a reaction, it is denoted by an upward arrow or G. So here you can see na, Zn in solid plus H2SO4 in aqueous. What do you mean by aqueous? Water in solution is called aqueous. Giving rise to zinc sulfate, again it is in aqueous, plus H2 gas. So either if gas is released, we can write this as H2 in gas, or we can also write this as H2 with an upward arrow. Anything you can write. Upward arrow means gas is released, or you can also write G in the bracket. It depends. Okay. And how to make the chemical equation more informative? We can also express the precipitate formed. If a precipitate is formed in the reaction, it is denoted by an downward arrow. Okay. For example, here it is written, example, AgNO3 in aqueous form plus NaCl giving rise to AgCl plus NaNO3. Okay, so here we can see, sorry, not this example, this was example, right, expressing gas evolved, zinc plus sulfuric acid giving rise to zinc sulfate plus hydrogen. ये था ना. Okay, see, here we have Zn plus H2SO4 giving rise to zinc sulfate plus hydrogen. How do we get this? Separate this H2SO4. Okay, so zinc combines with sulfate and hydrogen is released separately. So here we can write what is the precipitate evolved here? The precipitate evolved is AgNO3 plus NaCl giving rise to AgCl plus NaNO3. Here the precipitate evolved is AgCl, silver chloride. Okay, so that silver chloride you could have written beside it the downward arrow. Means you can write this equation as AgNO3 plus NaCl giving rise to AgCl with downward arrow. It means AgCl is the precipitate. What is precipitate? The insoluble substance which remains after the reaction at the bottom of the beaker is called as insoluble substance.
Okay, so if downward arrow is there means that is my precipitate. So that also I can get from the information from the chemical equation. Then it is also telling us some more points. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, here you have 2AgCl in the presence of sunlight giving rise to 2Ag plus Cl2. This is an important equation. This came earlier also in exam. Okay, what do you observe here? This splits. AgCl is splitting and forming into Ag and Cl2. So how is it splitting? When in the presence of sunlight. So this is what? This is a condition. So in the presence of sunlight, it gives rise to 2Ag plus Cl2. This kind of reaction is called as decomposition reaction. Which reaction is this? Decomposition reaction. What is decomposition reaction? Decomposition reaction is a reaction in which the reactant, this is called as reactant, right, on the LHS, the reactant breaks down into two or more products. So here we can see the reactant AgCl is breaking down into two or more products. That is why it is called as decomposition reaction. Okay, it was asked in June 2017 question paper. Now next example you have is this reaction. This is also an important reaction. When you see this, you will know which equation is this. This is an equation of photosynthesis. Okay, so 6CO2 plus 6HO2 in the presence of sunlight and chlorophyll gives rise to glucose C6H12O6 plus 6O2. Okay, remember this equation also. So in the presence of what it happens? Sunlight or chlorophyll. So it is telling that we can also express temperature, pressure and catalyst on above the arrow or below the arrow. So these are the four conditions by which we can make the chemical equation more informative. Next we have how to interpret a balanced equation. Interpret means information आप कैसा निकाल रहे balanced equation का. तो सबसे पहले हम लोग को अगर equation balanced है तो वो क्या देता है information, उसके reactants क्या है और उसके products क्या है. How will it give information about reactants and products? With the help of symbols and formulae. फिर it gives the ratio of molecules of reactants and products. कितने molecules है, ठीक है, reactant side पे और कितने molecules है प्रोडक्ट साइड पे, वो इन्फॉर्मेशन भी देता हम लोग को. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देन एज मॉलिक्यूलर मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिफाइड मास U, द रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नोन फ्रॉम द इक्वेशन. ठीक है. नाउ मीन्स in the later part of this textbook in today's class only we will see the concept of mass here. तो यहाँ पर वो बोल रहा कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मासेस, मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती. रिएक्टेंट साइड कितना मॉलिक्यूलर मास है और प्रोडक्ट साइड कितना मॉलिक्यूलर मास है, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती. फिर फोर्थ है, इफ गैसेस आर इन्वॉल्व्ड वी कैन इक्वेट देयर मासेस टू देयर वॉल्यूम्स एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम्स or those gases liberated at given condition of temperature and pressure using molar mass and molar volume relationship. यानी अगर गैसेस निकल के आ रही इक्वेशन में तो हम लोग उसको इक्वेट कर सकते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास है आपके पास, यहाँ पे वॉल्यूम है, कुछ भी फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन में से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो 12 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम पे है, 144 लीटर पे है. तो अब जो क्वेश्चन में देता उन्हें 6 ग्राम्स का कितना वॉल्यूम रहता, ऐसा मतलब मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप हम लोग अगर गैसेस भी इवॉल्व हो रहे तो फाइंड आउट कर सकते. दिस ऑल्सो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग को मैं जब एग्जाम्पल समझाऊंगी तो बोलूँगी. देखिए 5th पॉइंट का एग्जाम्पल है बल्कि, ठीक है. मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप हम लोग कायम कर सकते हैं अगर गैसेस इन्वॉल्व हो रहे तो. नाउ 6th पॉइंट, हाउ कैन वी इंटरप्रेट बैलेंस्ड इक्वेशन. इंटरप्रेट मतलब क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के आ सकता है बैलेंस्ड इक्वेशन से, कैसे समझ सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन को, उसका मतलब है इंटरप्रेट. तो यूजिंग मोलार मास एंड एवोगाड्रोस नंबर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द इक्वेशन. तो अगर अपने को मोलार मास मालूम हो गया और अपने को अगर एवोगाड्रोस नंबर मालूम हो गया तो फिर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी काउंट कर सकते हैं वो इक्वेशन में से और नंबर ऑफ एटम्स भी काउंट कर सकते हैं वो इक्वेशन में से. उसका मतलब ये है, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट. ये मालूम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो सबसे पहले क्या क्या मालूम हो सकता है हम लोग को, मास और मास के बीच में रिलेशनशिप हम लोग कायम कर सकते हैं, या फिर मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के बीच में, या फिर मास एंड वॉल्यूम के बीच में, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. ये 4 रिलेशनशिप भी हम लोग कायम कर सकते हैं अगर हम लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो ये साइड मास क्या है, ये साइड मास क्या है, यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, इट डिपेंड्स. नाउ शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है.
3 एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, आप लोग अच्छे से देखिए, बिकॉज कभी भी एग्जाम में कौन सा भी एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन सिमिलर टू इट विल बी आस्क्ड. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग, इट इज टेलिंग Al plus Fe2O3 gives rise to Al2O3 plus Fe. And atomic mass of aluminium is given in the question 27U, Fe 56U and O 16U. तो आपको कभी भी जब ये क्वेश्चन से सॉल्व करना रहता ना, रिमेंबर यू हैव टू टेक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड और नॉट. अभी हम लोग ये बैलेंस कर रहे थे ना, तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है एल्यूमिनियम के सामने, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम्स है तो, और यहाँ पर 2 आयरन्स है तो यहाँ पे भी क्या रहना, 2 आयरन्स रहना. तो आप जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते. तो एक्चुअली क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है, यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन है, ठीक है. टिल हियर वी हैव, दिस इज आवर क्वेश्चन, आंसर यहाँ से शुरू हो रहा. तो in the question only it's giving us a balanced chemical equation, but maybe in exam it won't give. तो already equation दे दिया, ठीक है. अब now what do you have here? Already it is also giving you atomic mass of aluminium. No need to remember these atomic masses values. तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये जो वैल्यूज दिख रहे हैं ना, ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, देखिए केयरफुली. हियर 2Al दिया हुआ है. अब Al का एल्यूमिनियम एटॉमिक मास कितना है, 27 है. तो आप 2 × 27 मल्टीप्लाई करेंगे. 27 2 ज़ा क्या होता है, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 4 + 1 5. दैट इज हाउ यू गॉट 54U और 54 ग्राम्स हियर. ये जो लाइन है ना, आप ये इग्नोर कर दीजिए. ये प्रॉब्लम में ये लाइन इस्तेमाल नहीं हो रही मोल की. सिर्फ आप यूनिफाइड मास ले सकते हैं, फिर ग्राम ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मास की बात होती. ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़े जब देखेंगे. सिमिलरली Fe2O3 का देखिए, 2 × Fe कितना है, 56, क्योंकि ये Fe2O3 है, मतलब ये पूरा एक कंपाउंड है, मतलब 2 बिलोंग्स टू आयरन. आयरन का दिया हुआ है यहाँ पे 56, तो आप 2 × 56 लिख दे रहे. फिर ये एक ही कंपाउंड है ना, तो ये आयरन और ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए हम लोग प्लस लिख रहे. 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है अपने पास, 16. अब 56 2 ज़ा करो आप लोग को, एक आंसर आता, प्लस 16 × 3 एक आंसर आता. दोनों को ऐड करें तो यू विल गेट द आंसर एज 160U और 160 ग्राम्स. सिमिलरली Al2O3 भी वैसे ही कर रहे हैं आप. देखिए यहाँ पे Al2O3 यानी 2 × 27 प्लस ये पूरा एक सिंगल कंपाउंड है ना, तो प्लस 3 × 16. 27 2 ज़ा 54 प्लस 16 3 ज़ा 48. 54 + 48 कितना होता है, 8 + 4 12, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 102U और 102 ग्राम्स. ठीक है, फिर वैसे ही आयरन 2 × 56 करेंगे आप, बिकॉज 2 सामने है, तो 2 × 56 इज 112U और 112 ग्राम. अब ने क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको, सपोज यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू गेट 1120 kg ऑफ आयरन बाय द अबव इक्वेशन. क्या बोल रहा हूँ आपको फाइंड आउट करने के लिए, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब उन्हें बोल रहा कितने ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम. कितने ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको 1120 kg ऑफ आयरन से. मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में एक रिलेशनशिप आपको दी हुई है, वो फाइंड आउट करना है आपको, एल्यूमिनियम और आयरन. तो ये इक्वेशन में से आप एल्यूमिनियम और आयरन से कंसर्न रहेंगे. ठीक है, 54 एंड व्हाट डू वी हैव हियर 112. ठीक है, तो आप एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाट विल यू राइट, एल्यूमिनियम गिव्स राइज टू आयरन. वही है ना यहाँ पे, एल्यूमिनियम गिव्स राइज टू आयरन. सी, एल्यूमिनियम गिव्स राइज टू आयरन. एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 54 ग्राम्स, आयरन 112 ग्राम्स और 112U. ठीक है, 112 ग्राम्स लिख देंगे आप. नाउ इट इज आस्किंग अस, यू आर सपोज दैट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड. कितना अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड है, तो आपको मालूम करना है ये कितना एल्यूमिनियम है, नहीं दिया हुई है वैल्यू, एंड ये आयरन की वैल्यू दी हुई है. इट इज टेलिंग रिक्वायर्ड टू गेट 1120 kg ऑफ आयरन. तो 1120 kg में दिया हुआ है. यू नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. तो आपको ग्राम्स में होना है आंसर, तो आप ये kg को 1000 में कन्वर्ट कर दो. हाउ टू कन्वर्ट kg इंटू ग्राम्स, मल्टीप्लाई इट विथ 1000. तो 1120 kg इंटू 1000 आप मल्टीप्लाई कर लिए. अब नाउ यू नो दिस राइट, हाउ टू डू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट है ये. x इंटू 112 इज इक्वल्स टू 1120 इंटू 100 इंटू 54. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, ऐसा करते हैं. सी आई विल शो यू.
x into 112, okay, x into 112 is equals to 54 into 1120 into 1000. क्या करते हैं, मेरे को x बनाना है यहाँ पे. So x is equals to 54 into 1120 into 1000 into 112. If it goes that side becomes divided by 112. अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है. अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 1000 into 54. Okay, you will get the answer, don't worry. Or I'll show you here. Okay, 6. Okay, I will do with the 2 table only. 2 2s are 4, 1 4, 2 7s are 14, 2 5s are 10, 1 2 2 6 are 12. Then we have 2 only will, okay, 3 से कर सकते हैं. 3 1s are 3, 56 नहीं कर सकते 3 से. 8 2 से करेंगे हम लोग. 2 5s are 10, 1 2, 2 6s are 12, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 1 6, 2 8s are 16. ठीक है, ये 7 से आता ना, बिकॉज 56 एंड 28 दोनों भी 7 से आते. 7 8s are 56, 7 0s are 0, 7 4s are 28. देन 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 0s are 0. आपके पास क्या बचा हुआ है? आपके पास 27 बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है एंड 1000 बचा हुआ है. तो व्हाट इज 27 2s are, अगर आप 27 2s are मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 54. एंड हाउ मेनी जीरोज यू हैव? 1 2 3 4, 4 zeros बचे हुए हैं. तो 54 एंड 4 zeros यू गॉट, दैट इज इन ग्राम्स. ये है. या फिर आपको केजी में लिखना है तो आप ये 3 zeros हटा देंगे और क्या लिखेंगे? 540 kg, बिकॉज ये कम हो जाती है ना वैल्यू केजी में रही तो, बिकॉज केजी इज मोर powerful than when compared to grams. So this is the amount of aluminium required. Okay, I hope you are understanding कैसा करना है. देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बोल रहा था कि आपको मालूम करना है कि कितना एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड है आयरन से. तो एल्यूमिनियम और आयरन को आप माइंड में रख लिए. एल्यूमिनियम का मास कैलकुलेट कर लिए, आयरन का मास कैलकुलेट कर लिए. एल्यूमिनियम ऊपर लिख लिया, आयरन भी लिख लिए बाजू. एल्यूमिनियम 54 ग्राम से, आयरन 112 ग्राम से. ये इक्वेशन से मालूम हो रहा. और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आयरन के नीचे आयरन, तो आयरन कितना है? 1120 है. एल्यूमिनियम तो नहीं मालूम हम लोगों को कितना है, तो x लिख दे रहा. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो आपको आंसर आ जा रहा. ठीक है, दिस इज योर मास मास रिलेशनशिप. मास मास रिलेशनशिप क्यों बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे भी मास ली में ग्राम्स, यहाँ पे भी मास ली में. एल्यूमिनियम की साइड भी मास ली, आयरन के सामने भी मास ली. तो ये यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा? मास मास रिलेशनशिप मिल जा रहा, इंटरप्रेटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. ओके, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2. It is telling you calculate the volume, mass and number of molecules. 3 चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा. वहाँ पर खाली मास पूछा था. Volume, mass and number of molecules of hydrogen liberated when 230 gram of sodium reacts with excess of water at STP. Atomic mass दे दिए हैं क्वेश्चन में भी. Na is 23U, O is 16U and H is 1U. U क्या है यहाँ पे? यूनिट है, एटॉमिक मास. ओके, मास की यूनिट है U यहाँ पे. आप लोग 9th में पढ़े थे ना. सो बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन इज, और यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन भी दे दे रहा. 2Na + 2H2O गिविंग राइज टू 2NaOH + H2. एग्जाम में नहीं दिया तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन ही यूज़ करना. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे 2Na 2 × 23 + 2H2. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 2H2 है. अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो खाली Fe2O3 था, तो हम लोग 2 × 56 + 3 × 16 ऐसे कैलकुलेट करे थे, राइट. बट हियर 2H2O है. 2H2O है मतलब ये जो 2 है ना, ये H2 को भी बिलोंग करता और O को भी बिलोंग करता. तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 2 × 1, बिकॉज हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 1 है ना, कुछ भी नहीं है ना नीचे, तो 1 रहता है. 1 × O कितना है? 16. ऐसा करेंगे आप. समझ में आ रहा? अब इसको कैसे लिख सकती मैं? 2 × 2 1s are 2 + 16 1s are 16. 2 × 16 + 2 is 18. 18 2s are 36. तो आपको 36 मिलेगा. ये समझ में आ रहा? मतलब ये 2 बाहर लिखा हुआ है ना, तो 2 को एज इट इज रखेंगे. आप पहले ये सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर कोएफिशिएंट बाहर रखा हुआ है तो उसको लास्ट में ऐड करना, वो बोलना चाह रही हूँ मैं आप लोग को. ठीक है, सो हियर यू हैव एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन. सबसे पहले हम लोग मास रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे, वो ईजी रहता है. तो सबसे पहले आप लोग मास रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर सोडियम है आपके पास. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ऑफ आपको हाइड्रोजन का मालूम करना है. वॉल्यूम भी हाइड्रोजन की मालूम करना है, मास भी हाइड्रोजन की मालूम करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी
हाइड्रोजन की मालूम करना है। लिबरेटेड मतलब निकल के आ रही, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल के आ रही ना। व्हेन 230 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशनशिप दी हुई है, दोनों भी मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कैसा लिखेंगे, एज यूजुअल आप लिखे थे ना इससे पहले भी क्वेश्चन में कि एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे आप। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सोडियम लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे। सोडियम गिव्स राइज टू हाइड्रोजन। अब सोडियम का कितना मिला हम लोग को 46 ग्राम्स, तो हम यहाँ 46 ग्राम्स लिख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना मिला यहाँ पे 2 ग्राम्स मिला, तो 2 ग्राम्स लिख देंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हम लोग को, व्हेन 230 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब ये 230 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर मतलब उन्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है। आपको सोडियम के बारे में देखना है यहाँ पे कितना सोडियम रिएक्ट कर रहा, 230 ग्राम रिएक्ट कर रहा, तो 46 ग्राम के नीचे आप 230 ग्राम लिख देंगे। 46 ग्राम के नीचे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, बिकॉज सोडियम का मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास नहीं दिया हुआ है। हाइड्रोजन का मास जो है फाइंड आउट करो बोल रहा। सी कैलकुलेट द वॉल्यूम मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितना है नहीं मालूम हम लोग को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा, ऑब्जर्व करिए आप लोग, ये भी मास है और ये भी मास है। सोडियम गिव्स राइज टू हाइड्रोजन, सोडियम का मास है 46 ग्राम्स, हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम्स, तो 230 ग्राम्स में कितना रहेगा, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी क्वेश्चन मार्क इंटू 46 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 230 आ रहा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, व्हाट इज 46 2 ज़ा, यू हैव 46 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 92, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 is 92 आता है यहाँ पे, बट दिस इज क्वेश्चन मार्क राइट, या दिस इज क्वेश्चन मार्क, सॉरी। ओके, सो यू हैव क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है आपको क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, कैसे करते हैं आप, ये एज इट इज न्यूमरेटर में लिखते 2 इंटू 230 इंटू 46, इफ इट गोज दैट साइड बिकम्स डिवाइडेड बाय 46, ठीक है ना। आप लोग को मान लेना चाहिए कि 23 2 ज़ा 46, याद रख लीजिए आप लोग। सो 23 1 ज़ा 23, 23 0 ज़ा 0, 23 2 ज़ा 46, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर क्या बचा, खाली 10 बचा। मतलब कितना ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 10 ग्राम्स रिक्वायर्ड है। देखिए आप लोग 10 ग्राम्स, ठीक है। तो मैं जैसा बताया आप लोग को वैसे लिखिए। अगर आप लोग ये टेक्स्ट बुक देख रहे हो तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसा कर रहा वो, बट अगर आप लोग मेरा एक्सप्लेनेशन फॉलो करें तो आप लोग वैसा लिख के फाइंड आउट कर सकते। अब नेक्स्ट हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। किसकी कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन की कैलकुलेट करना है। किसके रेस्पेक्ट से कर सकते हैं हम लोग, याद है आप लोगों ने क्या बोला था, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास ऑफ जो हाइड्रोजन हम लोग को मिला अभी 10 ग्राम्स, वो यूज़ करके हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर इट इज टेलिंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। 1 gram molar mass of any gas at STP, that is standard temperature 273 K and standard pressure 1 bar 760 mm of Hg occupies 22.4 liters, known as gram molar volume. Here it is giving the definition of gram molar volume. gram molar volume किसको बोलते, gram molar volume यानी अगर 1 ग्राम मोलार मास कोई भी गैस के एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता, 273 के रहता, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहता, 1 बार भी रह सकता, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी भी रह सकता। कितनी वॉल्यूम रहना, 22.4 लीटर्स रहना। अगर ये पूरे कंडीशंस है तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम मोलर वॉल्यूम। अगर एग्जाम में पूछा तो ये डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। और आपको STP का भी पूछता कभी, तो STP किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहना, 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहना, 1 बार और 760 mm, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, मास और वॉल्यूम की रिलेशनशिप लिखना है। कैसे लिखेंगे, मास और वॉल्यूम की रिलेशनशिप याद है, यहाँ पर मास होना हम लोग को और यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम होना। तो मास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कितना आया था आपको, हाइड्रोजन का याद है। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही है, बिकॉज ये मास है, ये वॉल्यूम है। मास और वॉल्यूम हाइड्रोजन के बीच में वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से हम लोग को मास मिला था 2 ग्राम्स, तो 2 ग्राम्स पे बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या रहता, हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज़ करते हैं हम लोग। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उन्हें, 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, 22.4 लीटर्स, ओके। सो 2 ग्राम्स बैलेंस्ड इक्वेशन से मिल रहा है हम लोग को ये 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स में कितने लीटर्स रहेंगे, 22.4 लीटर्स रहेंगे। अभी क्या मिला हम लोग को, 10 ग्राम्स।
तो 10 ग्राम्स में कितना वॉल्यूम रहेगा वो कैलकुलेट करना है हम लोग को. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को. तो क्वेश्चन इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 22.4. ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 10 इंटू 22.4 बाय 2. ऐसे कैलकुलेट करना है ना आपको. नाउ 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, मतलब 11.2 इंटू 10 करना है आपको. अगर आप 11.2 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 112, बिकॉज पॉइंट इज यूज टू रिमूव 0 हियर. ठीक है, तो 11.2 इंटू 10 विल गिव यू 112. 112 वॉट? 112 लीटर्स, बिकॉज इट इज़ वॉल्यूम. ठीक है, देखो 112 लीटर्स आ गया. समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही करना आप लोग. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों भी साइड्स. अगर मास और वॉल्यूम की बात हो रही तो यहाँ पे मास लिख देना आप, यहाँ पे वॉल्यूम लिख देना आप. मास जो है बैलेंस्ड इक्वेशन से कितना मिल रहा है आपको वो लिख देना. स्टैंडर्ड कंडीशन रहता है 22.4 लीटर्स. अब ये जो 10 ग्राम्स है अपने को अब भी कैलकुलेट करे तो आया, तो 10 ग्राम्स में कितना वॉल्यूम रहेगा ऐसा करेंगे आप कैलकुलेट. ठीक है, अब फिर से आपको जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है तो जब भी आप क्या करेंगे, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप लेंगे. ये जो चीज़ फाइंड आउट करना है आपको, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन क्या है वो करेंगे आप फाइंड आउट अब. ठीक है, तो अब कैसा करेंगे हम लोग. मास कितना था आपने को गिवन, 2 ग्राम्स था हाइड्रोजन का. ये पूरा हाइड्रोजन का ही रहता मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मास एंड वॉल्यूम फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं हम लोग. और एक चीज़ रिमेंबर, 1 मोल contains how many molecules? 6.02 into 10 power 23 molecules. That is called as Avogadro's number. ठीक है, याद रखिए ये भी चीज़ आप. Avogadro's number बोल के आया था ना. So 1 mole is equals to 6.023 into 10 power 23 molecules. तो 2 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स है? 6.023 into 10 power 23. 6.023 into 10 power 23 क्यों है? बिकॉज वो स्टैंडर्ड है 1 मोल के लिए. 1 मोल है बोले कैसे मालूम होता? सी आई शो यू हाउ टू नो वेदर इट इज़ 1 मोल और 2 मोल. ये आपको इक्वेशन से मालूम होता. केयरफुली ऑब्जर्व करिए इक्वेशन आप. यहाँ पर आपके पास ये जो सामने नंबर लिखा हुआ है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, उसको बोलेंगे हम लोग मोल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास है 2 सोडियम्स, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी मेरे पास 2 मोल्स है. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर है. यहाँ पे 2 NaOH है, मतलब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaOH है. यहाँ पे H2 के सामने कुछ भी है नहीं है, कुछ भी मतलब 1 है. तो कितने मोल्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H है यहाँ पे. 1 मोल में अगर रहा तो कितने रहते 1 मोल में? हमेशा याद रखिए 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहते 1 मोल में. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मोल ही है, इसलिए हम लोग 6.023 इंटू 10 पावर 23 ले रहे. तो कैसे करेंगे आप लोग कैलकुलेट? मैं आप लोग को यहीं करके दिखा देती हूँ. मास है यहाँ पे और यहाँ पे अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. ये कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग फॉर हाइड्रोजन ओनली. ठीक है, सो मास कितना था आपको बैलेंस्ड इक्वेशन से? 2 ग्राम्स था हाइड्रोजन का. तो 2 ग्राम्स में आपको कितने मॉलिक्यूल्स है? 6.023 इंटू 10 पावर 23 है. क्यों है 6.023 इंटू 10 पावर 23? बिकॉज ओनली इट इज कंटेनिंग 1 मोल एंड 1 मोल विल कंटेन ओनली 6.023 इंटू 10 पावर 23. तो अब यहाँ पे आपको कितने आए थे ग्राम्स कैलकुलेट करे तो याद है ना? 10 ग्राम्स आए थे आपको यहाँ पे याद है 10 ग्राम्स. तो 10 ग्राम्स में कितने रहेंगे? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई? क्वेश्चन मार्क इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10. अब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 इंटू 2. इफ इट गोज दैट साइड बिकम्स डिवाइडेड बाय. तो आपको कैसा आएगा? 2 1s are 2, 2 3s are 6, पॉइंट एज इट इज 2 0s are 0, 2 1s are 2. ठीक है, 2 1s are 2 आ गया. 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, टेक अ 0, 2 5s are 10. आपको आया 3.0115 इंटू 10. तो आपको इंटू 10 आया ना, तो आपको ये 0 निकालना है. ये 0 निकालने के लिए आप डेसिमल पॉइंट राइट साइड हटा देंगे मल्टीप्लीकेशन में. दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स. सो यू गॉट द आंसर एज 30.115. ओके, मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, देखिए आंसर वो आ गया हम लोग को या 30.11 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. 10 पावर 23 भी था ना, आई फॉरगॉट टू टेल यू. 10 पावर 23 भी था ना जस्ट नाउ वी सो ना. 6.023 इंटू 10 पावर 23 हम लोग जो है खाली इससे डिवाइड करें. ठीक है, तो ये जो है कितना है? 10 पावर 23 है. तो ये है मेरा आंसर. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ
थर्ड क्वेश्चन भी जो है, अगर आप लोग क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ तक है आप लोगों को बोलती हूँ मैं, यहाँ तक है, लिबरेट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहाँ से आंसर शुरू होता है आपका, इन द अबव प्रॉब्लम द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड तक क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के, टेक्स्ट बुक के अंदर ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो हियर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखे ना हम लोग, इफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड which contains 7.5 grams of dissolved hydrochloric acid. Chemical equation for the above reaction is, chemical equation is, it is given in the question only. Calcium carbonate formalized CaCO3 reacts with 2HCl giving rise to CaCl2 plus H2O plus carbon dioxide. CaCl2 means calcium chloride, H2O means water, CO2 means carbon dioxide. And ये question ही है ना यहाँ तक, तो ये भी दिया हुआ है, as per the matrix-Stachio equation 100 gram of calcium carbonate reacts with 73 gram of hydrochloric acid to liberate 44 gram of carbon dioxide। यानी ये बोल दे रहा कि ये कितना रहना, 100 ग्राम्स रहना कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना रहना, 73 ग्राम्स रहना, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहना, 44 ग्राम्स रहना। ये चीज़ें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज इट आस्किंग यू टू फाइंड आउट, फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करो बोल रहा, और देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो बोल रहा, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड आउट करो बोल रहा। और यहाँ पर इट इज टेलिंग यू व्हेन इट इज डिजॉल्व विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन, C73 एंड 7.3। सी हियर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 7.3 ग्राम्स है, एंड हियर इट इज टेलिंग 73 ग्राम्स HCl है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करिए 7.3 ग्राम्स HCl का है, यहाँ पे भी 73 ग्राम्स HCl का है। मतलब हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, HCl यूज़ कर सकते, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते। आप कार्बन डाइऑक्साइड और HCl क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज HCl का 7.3 ग्राम्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में 73 ग्राम्स भी दिया हुआ है HCl का। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी दे दिया उन्हें 44 ग्राम्स, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, 44 ग्राम्स पे कितना है, 73 ग्राम्स है, 44 ग्राम्स पे 73 ग्राम्स है, तो कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको आएगा, 7.3 ग्राम्स। यहाँ पे नहीं दिया ना उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड दिया उन्हें नहीं दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे उन्हें सिर्फ HCl का दिया था टू गिव 7.3। समझ में आ रहा, आप लोग क्या करें, HCl के नीचे HCl का डेटा लिख रहे, एक बार HCl का डेटा दिया हुआ है 73 और 73 में उन्हें 44 दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम्स रहेंगे अगर 7.3 रहा तो, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 73 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब क्रिस क्रॉस, 7.3 इंटू 44, ठीक है। तो अब आपको आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 7.3 इंटू 44 बाय 73 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 73 इंटू 44 बाय 73 इंटू 10 लिख सकते हैं आप। क्यों लिख रहे हैं 73 इंटू 10, बिकॉज हियर आई एम रिमूविंग डेसिमल पॉइंट, इफ आई वांट टू रिमूव डेसिमल पॉइंट मैं इसको 73 बाय 10 लिख सकती। ये छोटे क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है। 7.3 के अंदर रिटर्न है 73 बाय 10, तो मैं यहाँ पे 7.3 को 73 बाय 10 लिख रही हूँ, ठीक है। ये कैंसिल करने के लिए ईजी हो जाता ना, 73 वन जा 73, 73 वन जा 73, तो आपको आंसर क्या बच रहा है 44 बाय 10। 44 बाय 10 मतलब मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर में से जीरो निकालना है। जब भी आप डिवीजन में से डिनोमिनेटर में जीरो निकालते तो आप LHS के साइड कर देना, तो ये क्या बन जाता, 4.4 ग्राम्स बन जाता। तो आपको मास आ गया, ठीक है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 4.4 ग्राम्स। अब ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आप इजीली
वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट कर सकते और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते। तो मास अगर नहीं भी पूछ रहा क्वेश्चन में तो आपको मास फाइंड आउट करना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिलेशनशिप फॉर्म होती, मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फॉर्म होती, या फिर मास विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म होती, या फिर मास विद रिस्पेक्ट टू मास फॉर्म होती। तो इसलिए आपको कैसा भी मास तो फाइंड आउट करना ही चाहिए, बिकॉज एक तो मास होने ही छोड़ना पड़ता। तो आप मास फाइंड आउट कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4 ग्राम्स अब भी, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम लोग को इक्वेशन से क्या मिलता, जो इक्वेशन से मिला याद है आप लोग को 44 ग्राम्स मिला था ये इक्वेशन से। देखिए यहाँ पे एज पर मैट्रिक्स स्टैशियो इक्वेशन, मतलब ये वाले इक्वेशन से अपने को मिला था 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे हम लोग मास लिख रहे, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लिख रहे। आप लोग एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक है बल्कि इट इज गिविंग डायरेक्ट, बट आप लोग एग्जाम में लिख सकते मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास में यहाँ पर इक्वेशन से अपने को क्या मिला था, इक्वेशन में से 44 ग्राम्स मिला था। तो 44 ग्राम्स में कितना वॉल्यूम है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना रहता है अपने पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का स्टैंडर्ड वॉल्यूम रहता 22.4 लीटर्स। वी हैड सीन इन द अर्लियर सम, राइट? रिमेंबर स्टैंडर्ड वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अभी आपको क्या मिला, मास 4.4 ग्राम्स। तो 4.4 ग्राम्स में कितना वॉल्यूम रहेगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्वेश्चन मार्क इनटू 44 विल गिव यू 22.4 इंटू 4.4। अब मेरे को क्वेश्चन मार्क होना है यहाँ पे 4.4 है ये, ठीक है। क्वेश्चन मार्क होना मेरे को यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू ये कितना है 22.4 इंटू 4.4 इंटू 44, इफ इट गोज दैट साइड बिकम्स डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1.1 मिलता आपको, यहाँ पे 4 11 जा 44 मिलता, मतलब आपको 11.1 इंटू 22.4 बाय 11 मिल रहा, ठीक है। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22.11 2 जा 44 है ना। तो अगर आप 2.2 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आएगा 2.24 लीटर्स, ठीक है। या सो 2.24 लीटर्स आता है आपको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर। तो अपने को वॉल्यूम तो आ गई, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन 2.24 लीटर्स, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से डिफरेंट है एग्जाम्पल 3, मतलब सेम ही है। इन ऑर्डर टू कन्फ्यूज यू इट इज़ टेलिंग लाइक दिस पर मैट्रिक स्टेशन। यहाँ पर देखो आप लोग क्या ऑब्जर्व करें, आप लोग यहाँ पर उन्हें आपको मोलार मास नहीं दिया, एटॉमिक मास नहीं दिया, एटॉमिक मास नहीं दे के डायरेक्टली उन्हें वैल्यूज़ दे दिया। कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 73 ग्राम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स है, बल्कि डायरेक्टली उन्हें दे दिया वैल्यूज़ एटॉमिक मास देने के बजाय। अगर आप लोग एग्जाम्पल 2 देखें तो देखिए यहाँ पे आप लोग को एटॉमिक मास दे रहा था ना उन्हें ब्रैकेट्स में, तो आप लोग ये कैलकुलेट कर रहे थे और ये तो ऑलरेडी उन्हें क्वेश्चन में कर दे रहा था, बट एग्जाम में आप लोगों को करना पड़ता, एटॉमिक मास दे देता। तो यहाँ पर एटॉमिक मास देने के बजाय डायरेक्टली इट गेव द वैल्यूज़ फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन में से है, ये जो हमेशा क्वेश्चन आता है ये तो सेम था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग एटॉमिक मास ये ऐसा दिया था, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मास और वॉल्यूम की रिलेशनशिप। नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड कितने रहते हैं, अगर 1 मोल रहा तो आप लोग को मालूम है 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यू शुड रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर 1 मोल। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, आप लोग ऑब्जर्व करिए कौन सा होना अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड होना, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या है नंबर, कुछ भी है नंबर कार्बन डाइऑक्साइड से पहले नहीं है, नहीं है मतलब कितना रहता 1 रहता। तो कितने मोल है यहाँ पे 1 मोल ही ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड ही होना है ना यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना लेंगे आप 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही लेंगे। तो यहाँ पर यू हैव लाइक दिस ना, आप यहाँ पर आपका मास लिखेंगे और यहाँ पे आप आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही फाइंड आउट कर रहे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपको जो स्टैंडर्ड आपका जो बैलेंस्ड इक्वेशन था उसमें से क्या मिला था 44 ग्राम्स मिला था, ये बैलेंस्ड इक्वेशन में से मिला था अपने को, जो ने बोला था एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन जो मिला था अपने को 44 ग्राम्स में कितना है स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10 पावर 23 है। तो अपने को अब जो क्या मिला था मास 4.4 मिला था ना यहाँ पे आपको मास, ठीक है। यहाँ पे एरो आ रहा बल्कि नहीं दिख रहा, बट इट इज़ एक्चुअली 4.4।
सो 4.4 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये दो कहाँ से मिल रहा है आपको वैल्यूज़, ये 1 मोल था बल्कि 6.023 × 10⁻23 ली में, और 1 मोल क्यों था, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से पहले आपको 1 था नंबर, और ये 44 ग्राम्स का आया, ये बैलेंस इक्वेशन में से मिला मेरे को 44 ग्राम्स। और ये कहाँ से आया, ये जो अपन मास कैलकुलेट करें ना, ये वहाँ से आया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में से जो इन्फॉर्मेशन मिलता वो फर्स्ट स्टेप में लिखना, सेकेंड स्टेप में जो आप कैलकुलेट करते मास वो लिखना, और ये तो फाइंड आउट करना है बोले क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क इंटू 44 इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू 6.023, क्वेश्चन मार्क इंटू 44 इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 4.4। ठीक है, तब ये कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल क्वेश्चन मार्क इंटू 44 इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये मिला आपका क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 44 इफ इट गोज, ये 4.4 है ना, या सो इंटू 4.4 इफ इट गोज दैट साइड बिकम्स, सॉरी ये 4.4 है और ये 44 है, ठीक है, एंड दिस इज 44 ओनली, ओके, एंड दिस इज 4.4, ये 4.4 है, डिवाइडेड बाय 44 यू विल गेट। नाउ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 11 जा 44, फिर आप क्या करेंगे, 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, पुट अ पॉइंट, 11 1 जा 11, तो 0.1 इंटू 6.023 आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आएगा 6.023 इंटू 10⁻22। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं हम। 4 यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड आई टेल यू, डोंट वरी। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 जा 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11, 0.1 इंटू 6.023, आपको 0.1 इंटू 6.023 60.023 इंटू 10⁻23 आता। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, ऐसा मल्टीप्लाई करते ना, मल्टीप्लाई करिए ऐसा 60.023 इंटू 0.1, अगर ये मल्टीप्लाई करे तो आपको ये आता आंसर 60.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 60.023 इंटू 10⁻23 आता आपको। अब आपको क्या करना है, अगर मैं ऐसा भी छोड़ दे सकती, मोल्स मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है इतने मॉलिक्यूल्स, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इंटू 10⁻20 60.23 आया ना, सॉरी यहाँ पे आपको 60.23 आया, अगर आपको इंटू 10⁻22 लिखना है तो क्या करना, आप लेफ्ट साइड ये भेज देना, बिकॉज ये कम कर रहे हैं आप, तो आप या तो 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ये आंसर लिख के छोड़ दे सकते हैं 60.23 इंटू 10⁻23। कैसा मिला था आपको, 0.1 इंटू 6.023 मल्टीप्लाई करे तो आता आपको वो 60.23, ठीक है, इंटू 10⁻23, ऐसे ही छोड़ दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, मॉलिक्यूल्स लिखना लेकिन यूनिट। सो फाइनली वी फिनिश्ड आवर चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 पार्ट्स, एंड इन द थर्ड पार्ट व्हाट आई विल डू इज, दिस इज देन इम्प्रूव योर लर्निंग। जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके FAs के लिए, आपके essays के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, प्री फाइनल्स के लिए, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, ठीक है, शेयर दिस वीडियो with your friends, okay, tell them there is amazing content here, and subscribe to this channel because I'm going to make more such videos for you all. Stay blessed and have a nice day.